every human being is incomplete somewhere and everybody is searching for some meaning in their life. I think education के दो ही purposes होने चाहिए कि giving a meaningful life and leading a wealthy life. जितने अच्छे से आप प्रॉब्लम को समझोगे उतना अच्छा क्रिएटिव आइडिया यू कैन वर्क ऑन. एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा पार्ट आई वुड से गोइंग इन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द most important part. We have other things which gives meaning, not the money. National education policy is talking about experimental and experiential learning. Hello everybody, I'm Seema Choria, your founder, your host and your dost, and I'm super excited today because we are launching Great Edupreneurs, and this is the very first episode of Great Edupreneurs. Great Edupreneur is a podcast that aims to delve into the stories of individuals and entrepreneurs who are passionate not only about their business but are equally invested into the education industry. And I'm super excited because our inaugural guest is a person who is, he's a dynamic individual with a wealth of innovative ideas. And I'm sure by the end of the podcast, you will be in awe that you have met such a humble person. He has a strong aptitude for creating business and fluidity of balance within their organization. So please join me in welcoming Mr. Nitin Jadhav, founder and CEO of Life Education Universe. Welcome to Great Entrepreneurs, sir. I'm super excited to have you on my Thank you, podcast. Seema ma'am. Thank you so much for inviting us. So, really hopeful कि we will provide some value to our listeners, and definitely they will take some insights from our discussion. Absolutely, sir. So, sir, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये जाएगा जो कि मतलब जो लोग आपके बारे में नहीं भी जानते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए. आप एक क्वालिफाइड लॉयर हैं. इनफैक्ट यू आर अ हाईली क्वालिफाइड लॉयर, वेरी स्किल्ड, ऑफ रैंक होल्डर इन योर प्रोफेशन एंड यू आल्सो जॉइंड गवर्नमेंट जॉब. फिर क्या हुआ? व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट लाइफ एजुकेशन यूनिवर्स? व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? मैम बेसिकली अगर ऐसा देखा जाए तो सिंस द बिगिनिंग आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग एंड आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज इनकम्प्लीट समवेयर एंड एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर सम मीनिंग इन देयर लाइफ. सो आई स्टार्टेड विद द लाइफ कि ये लाइफ क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. एंड दैट सर्च हमें बोला जाता है कि ओके यू जस्ट क्रॉस दिस 10th स्टैंडर्ड देन देयर विल बी समथिंग. ओके यू क्रॉस दिस 10th स्टैंडर्ड देन देयर विल बी समथिंग. You just cross this graduation, whatever you may be doing, medical, engineering, law, whatever, then there will be a greenery, something will happen and then you will find the meaning. But वो पूरी जर्नी करने के बाद I have ranked first in civil services in Maharashtra and I have joined the government job also. But even after that, even after earning a good amount of money, एक मिडिल क्लास बंदे को जितना चाहिए ना, एक मिडिल क्लास से आने वाले लोगों को उससे कुछ अच्छा ही मिलता था. बट स्टिल देयर वाज दैट इनकम्प्लीटनेस. सो आई थॉट कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे जहाँ ले जा रहा है ना, दैट्स नॉट द प्लेस. कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो प्लेस और मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो ढूंढ रहा हूँ, एक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मीनिंग ऑफ लाइफ, देयर इज अ मिसमैच. सो एट वन पॉइंट आई न्यू कि आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. बट वो क्या डिफरेंट करना चाहिए था? I have started exploring different things. I have started my legal firm. Even I was in job with the help of friends. I have started a legal firm. I was working with my friend in a UPSC class. So जब मैं पढ़ाने लगा, at one moment we were not earning much. But उसमें तो मजा आ रहा था ना. I found the meaning. मुझे लगा कि yes, this thing I will do without money. So I started that way. We started with the UPSC class. But जब UPSC class में हम आगे गए, even in second batch, one of my student he selected for the interviews, but सब बच्चे IAS IPS नहीं बनते. तो he asked me when he was not selected in the interview, उसका IAS या IPS नहीं मिला, तो he said कि सर आपने जो मुझे बोला था ना वो सब मैंने किया, बट अब मैं क्या करूँ, बिकॉज अब मेरे पास ना पैसे है ना टाइम है, अब मुझे पैसे कमाना है. सो ड्यूरिंग UPSC आई यूज्ड टू टीच देम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी. तो वहाँ एथिक्स इंटीग्रिटी में ना हमें एक क्वेश्चन होता था कि व्हाट इज द हैप्पीनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते थे. तो हमने वो पढ़ाया तो था बच्चों को, बट देन ही सेड कि अब क्या करें, अब तो पेट का सवाल है ना. तो दैट टाइम आई टुक अ सब्जेक्ट फॉर द रिसर्च कि हाउ टू रीच योर क्रिएटिविटी एंड बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट और बिल्ड अ प्रोफेशन अराउंड इट. तो उससे वो जर्नी शुरू हुई. 2013 इट स्टार्टेड. एवरी बैच
with the UPSC we started teaching these skills because मेरे पास सेकेंड ईयर में जब इस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था, दैट टाइम वी हैड 98 स्टूडेंट्स, और जब मैंने उससे खुद को एक री एग्जामिन किया कि इसमें से कितने बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आई कुड से कि मुझे पता था कि इनमें से 3 बच्चे इंटरव्यू तक जाएंगे, उसके बाद जो बचे हुए 95 लोग हैं उनका क्या, तो दे शुड टेक समथिंग। तो दिस इज द वे कि हाउ स्टार्टअप एजुकेशन स्टार्टेड, बिकॉज जब मैंने वो टॉपिक लिया था हाउ टू रीच योर क्रिएटिविटी एंड बिल्ड अ बिजनेस और प्रोफेशन अराउंड इट, तब मुझे स्टार्टअप वर्ड भी पता नहीं था, तो तब हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव बिल्ट माय ओन 6 कंपनीज, वन इन कंस्ट्रक्शन, वन इन लीगल, वन इन आईटी, सो दैट गेव मी अ एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि मुझे लगा कि दिस शुड बी द एजुकेशन। मैं अगर एजुकेशन सिस्टम को मेरे लाइफ के 20 इयर्स दे रहा हूँ, देन आई शुड लर्न कि हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। आई थिंक एजुकेशन के 2 ही पर्पसेस होने चाहिए कि गिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ एंड लीडिंग अ वेल्थी लाइफ, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हमें पढ़ा ही नहीं जाता है। वी ऑल आर क्रिएटिंग द जॉब सीकर्स, नॉट द वेल्थ क्रिएटर्स। So I started researching on that. I gave nearly 7-8 years for that, and during my research I have created some courses, and that is what the Life Education Universe and the Startup Education Universe we have started. So sir, I understood that there was something behind you, the passion कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसमें satisfaction नहीं है, I want to do something more and you started this. लेकिन सर इतना easy नहीं होता है, फैमिली का क्या रिएक्शन था, फैमिली ने कैसे सपोर्ट Oh, किया? that was और a great story. My father is I would say he's a very genuine person, very genuine. He's not ambitious like me, but he's very genuine, very straightforward person. उन्होंने बचपन से ना मुझे he is a mechanic, ST mechanic. We belong to a very low middle class family, you would say. बचपन से उन्होंने मुझे रीडिंग के लिए ना वो कभी बुक्स लेके आते थे, कभी न्यूज़पेपर से एक कटिंग लेके आ गए, वो दे दिया। He used to say कि नितिन ना दुनिया बदल सकती है, बट सबको ना एजुकेशन मिलना चाहिए, और एजुकेशन ना सही वाला एजुकेशन, मराठी में वो बोलते थे खरं शिक्षण रे, हे शिक्षण नहीं खरं शिक्षण। आई डोंट नो वो 4th स्टैंडर्ड का उनका स्टेटमेंट था, और जब मैंने अभी वो मैं भूल भी गया था बीच में, बट समवेयर वो जो बोलते हैं ना संस्कार मिल जाते हैं, तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। बट जब मैंने जॉब छोड़ा था, आई वॉज टीचिंग टू यूपीएससी स्टूडेंट्स, और मैंने जॉब जून में रिजाइन कर दिया था, और मेरे फादर को पता चला सितंबर में, when I had a function where we invited some of my friends who have selected for IAS and some of the teachers who were teaching to some people in IAS Academy. तो वहाँ पे मेरे फादर कहीं पे खड़े थे। I specifically told him कि don't come. खुद के फादर के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, I would say कि वो हो नहीं पाता है। बहुत बार हम वो एक थोड़ा सा अलग फीलिंग होता है, बट वो आए वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने वो नहीं है समझ के मैंने बता दिया कि I have just resigned and all। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे एक वर्ड भी नहीं बोला कि नितिन क्यों रिजाइन किया। ही कुड अंडरस्टैंड मी, और उसके बाद एक स्ट्रगल था, बिकॉज बिल्डिंग अ बिजनेस, आई ऑलवेज से कि इट इज जस्ट लाइक, हम हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं ना, एक तप होता है, तप यानी 12 साल का एक तप होता है, हिंदी माइथोलॉजी में बोला जाता है। तो एवरीथिंग टेक्स अराउंड 5 to 10 years एट लीस्ट। तो वो 10-12 साल अगर आप देने के लिए तैयार है ना, तो आप कुछ भी क्रिएट कर पाते हैं। बिकॉज अभी मैं मेरे कलीग्स जो मेरी टीम है उनसे बात कर रहा था, 2 दिन पहले मेरा मूड इतना नेगेटिव था कि आई कुड सी ओनली प्रॉब्लम्स, एंड वंस द एनर्जी शिफ्टेड आई कुड सी ओनली अपॉर्चुनिटीज। सो वो सब ना आप किस तरह से लाइफ को देखते हो उस पर डिपेंड होता है। बट स्ट्रगल, आई से कि स्ट्रगल ना आपको, आप जो चाहते हैं ना लाइफ से, उसके लिए लाइफ आपको रेडी कर रही होती है। It is just like building muscles, means you have to break your muscles in the gym. तो वो जो breaking of muscles होता है ना, लाइफ में भी वही चल रहा है। But we always say कि ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टेकल है। ओप्रा विनफ्रे puts it very well. She says कि ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम is just a signboard which says you not this way, please go this way. यानी जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है, it just teaching you something कि नहीं ये यहाँ नहीं हो रहा है ना, किसी और तरीके से होगा, just try another way. तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा लाइफ को। तो और लाइफ वैसी है, it's always taking you to the next stage, next version of yourself. But हम वो strain नहीं चाहते, we want a easy life. But easy life में कभी meaning नहीं create होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को एक example देता हूँ। If you see roller coaster, अगर roller coaster से हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर से 360 डिग्री में घूमते हैं, 180 डिग्रीज में नीचे आते हैं, that creates a kind of fear. और हम उसमें से बाहर जब आते हैं ना, that is a lifetime experience.
बट बच्चों को मैं बोलता हूँ कि अगर वो रोलर कोस्टर गोल ऐसा ना घूम के ऐसा घूमने लगे, सिर्फ ऐसे चक्कर घुमाए, तो इट विल नॉट बी अ मीनिंगफुल जर्नी, क्योंकि आपको कुछ रिस्क ही नहीं है ना, यू नो, एंड इट डजंट क्रिएट अ मीनिंग, इट डजंट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट. सो लाइफ क्रिएट्स एक्साइटमेंट थ्रू चैलेंजेस एंड रिस्क ओनली, आई थिंक, और उसी से मीनिंग पैदा होता है, उसी से मीनिंग पैदा होता है. सो दैट्स इट. नहीं तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगा ना सर, अगर एकदम स्मूथ सेलिंग बोट होगा तो। कुछ तो या अप्स एंड डाउन्स भी चाहिए हमारी लाइफ में। बट सर यू नो स्पेशली एजुकेशन डोमेन में देयर आर यूनिकॉर्न्स, हम बायजूस को देख रहे हैं, हम अपग्रेड को देख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज यूनिकॉर्न बनी है, बट फिर भी एजुकेशन डोमेन इज़ नॉट एन ईज़ी सेक्टर टू वर्क विद। तो आपके क्या ट्रू. एक्सपीरियंसेस रहे थे? क्या आपने कभी अपने बिज़नेस को पिवट किया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और एक्चुअली उसके मैंने पीछे क्या मैम मेरा बिजनेस प्रोसेस मैंने था? 3 बार खड़ा किया है, 3 बार गिरा हूँ, बट हर बार मैंने कुछ सीखा है, हर बार मैंने कुछ सीखा है. आई हैव रोम्ड अराउंड more than 200 तालुकास इन महाराष्ट्र. आई थिंक 350 360 के बीच में तालुकास है महाराष्ट्र में. मेरे पास वीडी है, आई थिंक स्विफ्ट वीडी है, तो मैं उससे घूमता था. इवन तब तो ड्राइवर भी नहीं था, तो उससे घूमता था. बट दैट लर्निंग व्हाट हैपेंड एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल ना, दैट गिव मी सम इनसाइट्स, एंड फ्रॉम देयर आई कुड चेंज माय बिजनेस मॉडल. और वो लर्निंग ही आपको आपका बिजनेस बिल्ड करके देगी. आप अंदर मार्केट में जा रहे हो सिर्फ बाहर से थ्योरेटिकल कुछ पढ़ के, तो इट डजंट गिव. आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि theoretical knowledge plus experience give rise to some kind of wisdom, and that around that wisdom you can build your startup. आप अगर आपके टॉपिक पे theoretically जो भी गूगल पे अवेलेबल है वो सब आपको पता होना चाहिए, then try something. अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं इस फील्ड में तो साथ काम करिए, या फिर खुद का शुरू करिए, बट हैव एन एक्सपीरियंस, एंड ओनली आफ्टर द एक्सपीरियंस एंड द theoretical knowledge it gives a rise to some kind of wisdom. वो wisdom आने के बाद ही आपको समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बोला कि बायजूस एंड अनअकैडमी all are doing something outside the school and college education system. They are creating a parallel education system. उन्होंने जो एजुकेशन है उसी को जिस कोचिंग क्लास को ऑनलाइन लेके गए वो, आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया. इट इज अ बिग थिंग. और हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे यूनिकॉर्न बनना बहुत ईजी है. ये सब यूनिकॉर्न वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स हैं. आई ऑलवेज टेल कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इज स्टिल नॉट मैच्योर इनफ. इसीलिए हमने बायजूस को हीरो भी बनाया और उसको विलन भी बना दिया. He is not hero, neither the villain. It is just a simple business, and he's a very good guy, very genuine guy, trying to do something. He's a very genuine guy. Every entrepreneur, they go through their own struggles, and everybody is a human being. They have their flaws and they have their good things with them. So हमने उसका ना थोड़ा सा अलग ट्रायल किया था, because I come from a रूरल एरिया, विलेज एरिया. तो मैंने सोचा था कि मुझे ना उन बच्चों तक पहुंचना है जो स्कूल में बैठे हैं और उनको कोचिंग क्लास नहीं मिलता है. तो वी स्टार्टेड कि हमने एजुसैट नाम का एक सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया था. एपीजे अब्दुल कलाम जी का वो इनिशिएटिव था, और दुनिया का फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिन्होंने स्पेसिफिकली एक एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया था. और ऐसी टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो पेनिट्रेट नहीं हुई गाँव तक, क्योंकि उसको लेके बड़े बड़े कोचिंग क्लास जो दिल्ली में बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो जो फ्रेंचाइजीज बनाते हैं उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया था. बट वो उसका जो ऑब्जेक्टिव था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कि उससे उनको वो एजुकेशन गांव तक लेके जाना था. तो वी स्टार्टेड विद दैट टेक्नोलॉजी. वी गॉट द राइट्स, वी वर्क विद अन्ना हजारे, इवन भय्यू महाराज, इवन नाम फाउंडेशन, क्योंकि हमें रूरल एरिया तक पेनिट्रेट करना था. तो दीज आर द 3 बिग NGOs, so we started working with them, और हमने वो पेनिट्रेट भी किया. बट वहाँ पे ना पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है. तो बिजनेस में मेरा फर्स्ट लेसन ये था फर्स्ट फेलियर के बाद, कि सिर्फ फिलोसफी नहीं चलेगी, यू हैव टू क्रिएट अ सस्टेनेबल मॉडल आल्सो. तो वो चीजें ना उन्होंने आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम कुछ क्रिएट कर रहे हैं. बायजूस अनअकैडमी, वी आर क्रिएटिंग समथिंग इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस आज ऐसे हो गए कि मुझे अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम की आई थिंक उसमें गलती है. आफ्टर 12th, if you want to join some good professional course like IIT, medical, you have to go through a common entrance test like JEE, IIT or NEET, anything, MHCET, whatever they call it. But उसका कोचिंग कॉलेज में नहीं मिलता है. इवन दो सिलेबस इज सेम, बट उसका एक अलग टैक्ट होता है, अलग एक स्किल होता है पढ़ाने का, वो हमारे रेगुलर टीचर्स के पास नहीं होता. उसके वजह से कोचिंग क्लास आना पड़ता है बच्चों को. यानी आप अगर कोचिंग क्लास नहीं जाते हो तो आप अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं जा सकते. And similarly, after graduation, post graduation, if you want to join any services, just like UPSC, MPSC, ऐसी एग्जाम्स होती है, for that also you don't have a
इकोसिस्टम और एजुकेशन इन द स्कूल कॉलेज। सो उसके लिए भी आपको कोचिंग जाना पड़ता है। तो वी ट्राई कि ये कोचिंग हम नीचे लेके जाएं स्कूल और कॉलेजेस में, बट ये करते हुए हमारा कोचिंग को बड़ा करना ये उद्देश्य नहीं था। बिकॉज जैसे जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम में नीचे गया देखा तो प्रॉब्लम अलग है। इसमें से भी बच्चे कोचिंग लेके जब बाहर निकलेंगे तो उसका सक्सेस रेट 1 और 2% है। व्हाट अबाउट दोस रिमेनिंग 98% ऑफ द स्टूडेंट्स? तो उनको क्या दिया जा सकता है? तो इंडिया जैसी कंट्री में जहां 140 एंड अबो हमारा 140 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप लोगों को जॉब नहीं दे सकते। यू हैव टू क्रिएट द जॉब creators, not the job seekers. And the whole education system, Indian education system right now, is creating the job seekers. Nobody knows कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, जॉब करना है, क्या जॉब करना है, जो मिले वो जॉब करना है। जस्ट लाइक दैट। कुछ IITs, IIM जैसे कॉलेजेस है, वहां पे भी पूरा क्राउड नहीं, बट कुछ लोगों को पता होता है कि ओके आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट और दैट स्टार्टअप, इस तरह से। बट बच्चों को ना हम वो दे ही नहीं रहे। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ऐसा हो सकता है कि सब लोग अपना अपना पैशन ढूंढे, क्रिएटिविटी ढूंढे और उसको एक बिजनेस या प्रोफेशन में लेके जाए। एंड इट इज पॉसिबल इन दिस 21st सेंचुरी ओनली। इट इज पॉसिबल बिकॉज अभी उतनी इकोनॉमी ना वाइब्रेंट हो चुकी है, उतनी ओपन हो चुकी है। अब हर चीज को आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यूट्यूब पे जितने भी आज लोग हैं, वॉट एवर दे मे बी डूइंग, बट हर कोई ना अपना पैशन फॉलो कर रहा है। सो इट इज अ बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आई वुड से। उसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर अच्छी चीज है, एक कोई भी नई चीज आती है तो उसमें अच्छी चीजें आपको हीरे भी मिलेंगे और कचरा भी मिलेगा। तो यूट्यूब पे आपको कचरा बहुत मिलेगा, बट जो हीरे है ना वो भी बहुत है। अब इसका हमारा एक डेटा मैंने कहीं पढ़ा था, तो इंडिया में यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पे मोर देन 8 करोड़ क्रिएटर्स आर देयर, बट ओनली आई थिंक कुछ 1,20,000 आर अर्निंग आउट ऑफ यूट्यूब। 1,20,000 out of 8 crore people, only 1,20,000 are earning. So इतना कम रेशियो क्यों है? Because they are not putting something meaningful or valuable on the YouTube. They are using it for only entertainment. Even entertainment भी quality का है तो you can earn, but कुछ वो कचरा जा रहा है। It is not that much of valuable to the people. So हर चीज का आपका ना एक देखने का नजरिया होना चाहिए कि what we are trying to create. और इंडिया जैसे कंट्री में I think startup education, what we call the startup education, is the solution because it can solve every problem. क्योंकि what is startup? Basically startup means solving a problem. और हम जब देखते हैं तो गांव से लोग शहरों में आ ही रहे दो चीजों के लिए। One is for the education and second is to have jobs. अगर गांव के लेवल पे आप ये सिखा दे कि एजुकेशन आप ऑनलाइन या किसी प्लेटफॉर्म से या यहाँ पे आके लिख सकते हैं और अपने लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आप पैसे क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द वेल्थ, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट्स व्हाट वी कॉल द स्टार्टअप एजुकेशन। एक्चुअली स्टार्टअप एजुकेशन ऐसा टर्म भी कोई यूज नहीं करता है। ऑल पीपल यूज द एंटरप्रेन्योर्स द वर्ड, बट वो वर्ड इतना हेवी हो जाता है ना कि लोगों को वो अपने आप ही एक क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो वी आर यूजिंग द सिंपल वर्ड कि स्टार्टअप एजुकेशन, जस्ट कम हियर, हैव 6 months course, work on your startup for 6 months, within a year you will have a running business। because बिजनेस क्रिएट करने के लिए ना हर किसी को हर कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो देयर, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड यू कैन क्रिएट द स्टार्टअप्स। अदरवाइज स्टार्टअप में ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टअप पढ़ाया नहीं जा सकता। एवरीबडी सेज कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, दे कैन नॉट बी मेड। यानी आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं कर पाते, एंटरप्रेन्योर्स बोर्न होते हैं। आई चैलेंज दैट बिलीफ। हर कोई जो जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिली से आता है, 90% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर बोर्न एंटरप्रेन्योर्स। You would say they were born? No, they have got two different things. जो हम अभी हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ लाइफ एजुकेशन यूनिवर्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कि जो ऐसे बिजनेस फैमिलीज से लोग आते हैं या कम्युनिटीज से लोग आते हैं, दे हैव टू थिंग्स। उनकी कम्युनिटी में ना फॉर्मल नहीं बट इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है घर में उनका बिजनेस के लिए। सो हम हमारे लाइफ एजुकेशन यूनिवर्स में वो स्टार्टअप एजुकेशन दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और दूसरी चीज कि उनको ना फेल्यूर के बाद एक एक्सेप्टेंस मिलता है। उनके घर में एक वर्ड यूज किया जाता है, अरे धंधा है, फेल्यूर चलते रहता है, ये चलता है। वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट फेल्यूर्स एंड लर्निंग, फेल्यूर्स एंड लर्निंग। एंड यू जस्ट इंप्रूव योर प्रोडक्ट, यू मेक योर प्रोडक्ट मार्केट फिट ओनली आफ्टर द ट्रायल एंड एरर। वो हमें सिखाया नहीं जा रहा है। हम अभी एक डिस्कस कर रहे थे कि वी आर लॉन्चिंग अ 1 year course from this year with the Vamnicom, one of the India's leading institute in management, cooperative management studies.
उन्होंने हमें अप्रोच किया है, तो वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स। वहाँ पे हमें 1 साल का कोर्स उनके साथ लॉन्च कर रहे हैं। पीपल विल स्टे विद अस फ्रॉम द मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 AM। उसमें सिर्फ 3 घंटे वो लेक्चर करेंगे। बाकी टाइम दे विल वर्क ऑन देयर ओन स्टार्टअप्स, सिटिंग इन अ कैफे, वी कॉल इट स्टार्टअप कैफे, एलयू स्टार्टअप कैफे। 3 घंटे आपको क्लासरूम में जाना है, बाकी टाइम आपके दोस्तों के साथ बैठना है, कॉफी पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, वहीं पे रहना है, आप सुबह आके शाम तक। हम बोलते हैं कि अगर 6 महीने बंदा इस तरह से जी ले ना, अगले 6 महीने में वो कुछ करेगा। बिकॉज यू हैव टू चेंज देयर बिलीफ सिस्टम, देयर थॉट पैटर्न्स एंड देयर हैबिट्स। एंड हर किसी को अब हर कोई चीज पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन क्रिएट अ इकोसिस्टम लाइक दैट, तो चीजें ना हम कुछ अलग तरह से पढ़ा रहे हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग द जॉब सीकर्स, आई वुड से, इन दिस सिस्टम। राइट। सो हियरिंग यू दैट आपने जो मॉडल बनाया है कि दैट आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो कैफे में एंड यू स्टार्ट थिंकिंग एंड ओपन अप योर थॉट्स टू ब्रिंग अप न्यू आइडियाज, सो यहाँ से आइडियाज इनिशिएट होंगे एंड दे विल पुट मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ इट ऑल्सो एंड देन सी हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। एम आई राइट सर? दिस इज व्हाट इज ऑल स्टार्टअप यस यस एजुकेशन ऑल यस अबाउट, राइट? यस, बिकॉज सो लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है बेसिकली कि आई डोंट हैव आइडिया। इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिव आइडिया। आप मेडिटेटिव स्टेज में बैठे हो, हिमालय पे चले गए, 6 महीने मेडिटेशन किया और कुछ आइडिया आया उसके ऊपर आपने काम किया, नो। every idea every idea, it may be Facebook idea or Uber idea, all these ideas are solution to some problems. लोगों ने राइट। आइडिया पे फोकस नहीं किया, दे हैव फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स। जैसे फेसबुक, अगर फेसबुक को देखा जाए तो फेसबुक का फाउंडर एक कैंपस में था जहां पे वो एक वर्क कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म पे जहां पे उसकी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां सब एक दूसरे से चैट कर रहे हैं एंड दे कुड सी ओनली द नेम्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। बट उस एज में, यूनिवर्सिटी के एज में, स्टूडेंट्स लड़की का चेहरा देखना चाहेंगे ना। So he was solving that problem. A young guy who is around 18 or 20 years of age, he wanted to see the face of those girls in his campus. So उसमें से उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने दिया था उबर। उबर के जो फाउंडर थे, इन द मॉर्निंग अराउंड 3 AM, आफ्टर द पार्टी दे वर सर्चिंग फॉर द टैक्सी एंड दे कुडंट फाइंड इट। तो उन्होंने सोचा कि यार ये हमें जैसा प्रॉब्लम आया सबको आता होगा ना, हर बार मुझे टैक्सी स्टैंड तक जाना होता है या टैक्सी को मैं बुला नहीं सकता, अदरवाइज आई हैव टू कॉल। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, दे वर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, दे एग्रीगेटेड आई थिंक 50 टैक्सीज ओनली, 50 ड्राइवर्स, और उन्होंने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके लोगों को बताया कि नाउ ना यू हैव टू जस्ट book taxi from the our platform, mobile platform, you need not to go to the taxi stand. So it was the problem. जैसे ही आप प्रॉब्लम, जितने अच्छे से आप प्रॉब्लम को समझोगे उतना अच्छा क्रिएटिव आइडिया यू कैन वर्क ऑन दैट। अभी हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सब एप्स यूज करते हैं, दोज आर द क्रिएटिव आइडियाज। बट हम हर 15 दिन में या 1 महीने में उसको अपग्रेड भी करते हैं ना, उसका जो नेक्स्ट वर्जन होता है, वी हैव टू अपग्रेड दैट वर्जन। देखो एक आइडिया है फेसबुक एंड दे स्टिल वर्किंग ऑन दैट, मींस इट इज, एक बार आपको Improvising. आइडिया आ गया और खत्म हो गया ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बी क्रिएटिव इन द प्रोसेस। तो प्रॉब्लम जितने अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छा आप आंसर दोगे एंड दैट विल बिकम अ क्रिएटिव आइडिया। इट वोंट स्टार्ट विद द क्रिएटिव आइडिया, इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम and then you will search for the solution and you will go into the market, you will learn something and then slowly इसीलिए startups ना initial stages में profitable नहीं होते हैं, because they are just working on the problem, they are going into the market and after few months or few years, अगर आप बड़े बड़े companies का business plan देखो, जैसे Google हो जाए, Amazon हो जाए, आपका PayPal हो जाए, इन्होंने इनके business models में, बिजनेस प्रपोजल्स में लिखा था कि हम 7 साल बाद प्रॉफिटेबल बनेंगे, 10 साल बाद प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये बिजनेस मॉडल का एक फॉर्मेट होता है और हम वो 7 साल प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? दे आर टेस्टिंग द प्रोडक्ट, दे आर क्रिएटिंग द मार्केट। सो ये चीजें हम सिखा ही नहीं रहे बच्चों को। राइट। सो हियरिंग ऑल दीज बिग नेम्स, मुझे ध्यान में आया कि ये सारे आइडियाज भी गैराज में बॉर्न हुए थे, फ्रेंड्स सिटिंग एंड डिस्कसिंग ये प्रॉब्लम है। सो आइडियाज जनरेट करने के लिए यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव एंड एज यू मेंशन कि हमें अपने काम पे काम करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए एंड इसमें रिजेक्शंस भी होते हैं। I read about it and heard also about it that Uber was rejected by leading US firms, and today Uber is the company which is responsible for running US. You cannot imagine US without an Uber today. So you will get rejections also. Your business will be rejected by many, but you have to stand firm. So ऐसे में sir, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करे, क्योंकि वो खुद का बॉस है। लाइक वी आर जस्ट चैटिंग बिफोर द शो दैट आप भी थोड़े से परेशान थे। I would say meditation and the yoga.
which is the gift of India to the world, I would say. Mhm. अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि योगा डे के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे है वहाँ पे वो छुट्टी लेके वहाँ पे मेडिटेशन और योगा करते हैं. इंडिया में मेडिटेशन और योगा करने वाले लोग कम हैं यूएस से, बिकॉज दे आर मीन्स आप जैसे ही जोर से भागने लगोगे ना आपको आपका सर्विसिंग भी करना पड़ेगा जैसे गाड़ी का होता है, तो दे आर रनिंग वेरी फास्ट. नाउ दे नो कि ये मैं अगर बाहर गाड़ी को इतना भगाऊंगा ना तो आई नीड टू डू द सर्विसिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दैट्स वेयर द मेडिटेशन एंड योगा हैज स्टार्टेड टू इम्पैक्ट द पीपल. सो ये चीज मेडिटेशन, हम ना मेडिटेशन को कुछ अलग तरह से देखते हैं. आई वुड से कि इंडिया में ना बहुत ही एक पैसिव मेडिटेशन है, नॉट द एक्टिव मेडिटेशन. मेडिटेशन यानी कुछ सैल्वेशन, कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, ऐसी कुछ चीज सोची जाती है. नहीं, इट इज अ सिंपल थिंग. इट गिव्स यू कामनेस, यू कैन रिलैक्स योर बॉडी, you can relax your mind, you can see a thing which is happening in front of you in a different perspective just by going into that state. I would say 10 minutes of meditation will create miracles. But लोगों को ना वो समझ ही नहीं है कि इससे होगा क्या. लोग अपना भाग रहे हैं, बुक्स में आंसर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं. आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट. आपने क्वेश्चन भी ना पूछा होता ना, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा पार्ट आई वुड से गोइंग इन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज कोई भी आपको किसी स्टार्टअप पे आपको काम करना है ना, यू हैव टू हैव दैट पैशन फॉर दैट. और आपको आपका पैशन, क्रिएटिविटी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द माय क्रिएटिविटी, व्हाट इज माय पैशन, वेयर आई फील अलाइव. जब मैं पढ़ाता हूँ ना, आई वुड सी कि वो एक फ्लो होता है. मेरे कुछ लेक्चर्स होते थे यूपीएससी में, एथिक्स और इंटीग्रिटी के लेक्चर्स. शाम में लेक्चर्स होते थे, 5 बजे शुरू होता था मेरा लेक्चर, और कभी लाइट्स अगर चली जाए और अंधेरा होने लगे तो बच्चे बोलते थे सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाना है ना, यू जस्ट टीच अस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड वी विल सी. तो हम यानी गर्मी में बैठ के अंधेरे में एक मोबाइल ऑन है और 2-2 घंटे का लेक्चर होता था. सो देयर आर सम थिंग्स इन योर लाइफ, इफ यू calm down, if you relax and if you search for those things for a longer time. ये मैं एक सीटिंग में या 2 सीटिंग में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं बोल रहा हूँ. If you give a longer period to understand yourself, you will find out कि these are the things where I get the meaning in doing those things. मैं जब पढ़ाता था, initial 2 years I was not getting a single rupee. I was doing my job and I was teaching at somebody else class, my friend's class. बट मुझे मजा आता था. मैं जॉब को 10 बजे जाता था, 6 बजे वापस आता था. 6 बजे मैं सीधा क्लास लेने जाता था. आई यूज्ड टू टेक अ 2 आवर सेशन, बट उसमें ज्यादा मजा आता था इन स्पाइट ऑफ कि मुझे जो दिन भर काम करके मुझे पैसा देता था उस जॉब से ज्यादा. सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर वैसा काम आपके पास है ना, यू वोंट फील इट एज अ हार्ड वर्क, और वहीं पे आपका मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर. बट लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मनी, अर्निंग मनी. तो उसके वजह से आप कहीं पे ना खुद का वो फ्लो, यानी आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट क्रिएट्स ऑल काइंड्स ऑफ टेंशंस एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या चाहिए लाइफ में. Right, sir. So, to my dear viewers, आपको जैसे कि सर बता रहे हैं, you must have understood that sir has a different angle altogether to provide us. Sir is helping us to make a major shift from industrial knowledge, from industrial to a knowledge education system. सर वेल्थ एजुकेशन, कॉन्शियस एजुकेशन में भी बहुत बिलीव करते हैं, एंड सर उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं. ही हैज़ अ विजन of creating India's first startup university, and Life Education Universe is his first brainchild. So I would like to understand from you, sir, now as a founder, आप लाइफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और ये हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री को, हमारे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को कैसे एक नया सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें? Ma'am, I want my students to be there to find their meaning and lead a meaningful life. We call it, हम जब life education या startup education बोलते हैं ना, we always say कि life education all about creating a meaningful, purposeful life, and startup education is all about creating the wealth. How to create wealth and how to be happy or lead a meaningful life. ये 2 चीजें अगर समझ जाए ना कोई भी इंसान, तो उसकी लाइफ ना बहुत स्मूथ हो जाती है. बट इट्स अ स्ट्रगल, बिकॉज यू हैव टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स. बिकॉज हमने ना हमारे आजू बाजू में जो भी हो रहा है, साइड पेज में, घर में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, पूरी सोसाइटी में हो रहा है, उससे बहुत से पैटर्न्स बना लिए. उन पैटर्न्स में ही हम जी रहे हैं, एंड वी से कि दैट इज द लाइफ. नो, दैट इज नॉट द रियल लाइफ. इफ यू लुक एट
any autobiography or general biographies, and you go through the great people's life, you'll find out कि they were searching for something. और हम सब ना जब बच्चे थे, we were searching for something. हमें ना कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी होती थी, हम वो क्यूरियोसिटी को ना किल कर देते हैं एक बड़े होने के बाद. तो वो क्यूरियोसिटी जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदा हो, अदरवाइज यू आर जस्ट लाइक अ मशीन. सो वो अगर आप देखो तो वो दो चीजें, आई वुड से कि यूनिवर्सिटी में हम वो दो चीजें पढ़ाना चाहते हैं कि हाउ टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ, अ पर्पसफुल लाइफ, एंड हाउ टू क्रिएट वेल्थ. अब वेल्थ क्रिएशन पे लोगों को लगता है कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेल्थ वेल्थ वेल्थ. आई वुड से कि मनी इज लाइक, मनी गिव्स यू फ्रीडम. मैंने जब जॉब छोड़ा था तो आई कंसल्टेड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हु वाज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. उसकी वाइफ रैंक फर्स्ट है अभी महाराष्ट्र में जब हमने एग्जाम दी थी. तो दोज आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन माय सराउंडिंग. सो उनसे मैंने कंसल्ट किया था कि देवेंद्र मुझे ना यार जॉब छोड़ना है. तो दे सेड कि नितिन जॉब छोड़ दोगे तो कमाई का क्या होगा. मैंने बोला कि यार अगर ये जॉब मैं करता रहूँगा, इफ आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, तो मैं 40 साल भी जॉब करता हूँ ना, तो अराउंड 40 साल का 12 लाख से 4 करोड़ 80 लाख, यानी मैं मेरे लाइफ की 40 साल सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख के लिए दे रहा हूँ. बट अगर मैं एक बिजनेस करता हूँ ना, एक छोटा सा, जो मुझे चीज़ पसंद है, तो इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 ईयर ऑल्सो आई कैन क्रिएट दैट मच ऑफ अमाउंट. और कोई भी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट मी. तो वो अगर आप कर सको ना, देन देयर विल बी संडेज जो हम वीकेंड की वेट करते हैं ना कि चलो इस महीने सैलरी आ जाए या 8 दिन काम कर लूँ, 2 दिन मुझे मिल जाएंगे. तो वी वर ऑल लिविंग फॉर दोस वीकेंड्स. अगर आप वो वीकेंड अगर हटा दो ना, पैसे अगर कमा लो, तो हर दिन आपका वीकेंड है. एवरी डे इज अ संडे. एंड दैट डे अगर आपके पास पैसे भी है, आप दुनिया घूमोगे, कुछ चीज़ों के लिए आप जो भी शॉपिंग करना चाहो, जो भी करना चाहो, वो चीज़ें आप 1-2 साल कर पाओगे. उसके बाद ना आपको बोर फील होने लगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मुझे कुछ चाहिए ऐसा कि जो मुझे मीनिंग दे लाइफ को. बट अभी क्या हो गया है, वी आर स्टक इनटू दैट साइकिल, दैट रैट रेस ऑफ अर्निंग द मनी. बट एक बंदा BMW लेके भी खुश नहीं है और एक बंदा अल्टो लेके भी खुश है. तो आई एम नॉट सेइंग कि क्रिएटिंग वेल्थ मींस create a multi-billion dollar company or million dollar company. I'm just saying you just find out what gives you happiness and create wealth accordingly and have that freedom. Money is equal to freedom for me. Money gives you freedom. So वो समझना पड़ेगा हमें कि हम जा कहाँ रहे हैं लाइफ में. We have a 100-year 90-year life everybody has. So उसमें से हम ना बहुत सा टाइम हमारा लाइफ का सिर्फ पैसे के पीछे घुमा देते हैं. But we have other things which gives meaning, not the money. But money is the most important thing. So हो क्या जाता है, in Indian context ना, we are very religious person I would say, but we are not spiritual. हम कभी spiritual थे. Now we are very materialistic. But हम खुद को बोलते हैं कि हम religious हैं, but we are hypocrites. As a Indian community, we are hypocrites. Everybody is talking about religion and everything, but everybody is focused on money. So directly फिर money कैसे कमाए ये सिखा दो ना भाई. 5 साल 10 साल मेरे चले जाए, मैं वो कमा लूं और उसके बाद मीनिंगफुल लाइफ शुरू हो. सो देयर शुड बी अ बैलेंस कि मुझे पैसे वो किस तरह से कमाने चाहिए ये भी बता दो, और वो मीनिंग कैसे क्रिएट करना है लाइफ का ये भी बता दो. दीज आर द 2 थिंग्स आई थिंक, इसमें लाइफ खत्म हो जाती है. इसके बाहर लाइफ में कुछ नहीं है. सो सर आपने मतलब मुझे एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ लाइफ एजुकेशन यूनिवर्स, और आई थिंक आपने पहले मुझे ये मेंशन भी किया कि दैट यू आर द वन हु इज़ वर्किंग विद द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. सो हाउ डू यू इंटीग्रेट द curriculum of life education universe with the curriculum of schools and universities? एक्चुअली अभी ना एक बहुत अच्छी चीज हुई है. वी हैव अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. बट वो सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. तो उस चीज को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाए, वी आर जस्ट हेल्पिंग द स्कूल्स एंड कॉलेजेस कि अभी जो भी टॉपिक्स है हम स्कूल कॉलेजेस में साइंस मैथमेटिक्स जो टॉपिक्स हैं इनके, ये हम एनईपी के हिसाब से पढ़ाते हैं, जो बच्चों को आगे जाके उसका सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट किस तरह से सिखाया जाए. हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि अगर 7th स्टैंडर्ड को 50 प्रिंसिपल्स है साइंस में, तो वी विल teach those students those principles in a different way. We could not teach maybe कि हम 50 प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ा पाए, मे बी 20 प्रिंसिपल्स पढ़ा पाए, बट हम वो पढ़ाते हुए ये एटीट्यूड रखते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल
जो ना इसे यूज करके किसी ने नोबेल प्राइज विन किया है। इस प्रिंसिपल को साइंस के किसी ने यूज करके ना एक बिलियन डॉलर कंपनी बना ली है। इसको लेके ना किसी ने दुनिया बदल दी है। तो वो प्रिंसिपल जब वो बच्चे पढ़े तो उनको सोचे कि बस यार यही प्रिंसिपल्स है जो मैं बुक में पढ़ता हूँ, जिससे दुनिया बदली है, जिससे किसी ने नोबेल प्राइज विन किया है, किसी ने बिलियन डॉलर कंपनी बनाई। तो बचे हुए प्रिंसिपल्स जब पढ़े ना, तो उनका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ओके, इन प्रिंसिपल्स में से मैं दुनिया कैसे बदलूंगा, मैं कभी नोबेल प्राइज किस तरह से जीतूंगा, मैं किस तरह से कोई बिलियन डॉलर कंपनी बनाऊंगा। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। सिस्टम तो वही है, वी आर जस्ट हेल्पिंग स्कूल्स टू execute the NEP in a proper way, because जो पुराना स्टाफ है उनके कुछ लिमिटेशंस है। वी आर जस्ट बीइंग अ हेल्पिंग हैंड टू द स्कूल्स कि जहाँ पे हम उनको ये इस तरह से पढ़ाना सिखा पाए। और दैट्स ऑल अबाउट व्हेन यू से एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये किसके लिए किया जा रहा है? To materially realize whatever I am learning in the school or college, to materially realize it in his or her life, student's life. That's startup education. जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसका मटेरियल रियलाइजेशन में स्टार्टअप एजुकेशन। अब हम जो यूनिवर्सिटी या अभी लाइफ एजुकेशन यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग टू द स्कूल लेवल, टू द कॉलेज लेवल, और वो थोड़े छोटे बच्चों से, क्योंकि माइंडसेट अभी जब हम ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को स्टार्टअप पढ़ाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसने जो सीखा है ना वो अनलर्न करने, because all of them are job seekers, not the job creators or the startup founders. तो वो मेंटालिटी अगर हम स्कूल लेवल से ही बिल्ड करें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बच्चे फिर उस तरह से लाइफ को देखने लगेंगे कि मुझे ना स्कूल में से जाके ना आफ्टर 12th में 3 साल 4 साल किसी ग्रेजुएशन में नहीं डालूंगा, उन 4 सालों में मैं अपने स्टार्टअप पे काम करूंगा और फेल भी होता हूं उस 4 सालों में, तो दैट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई विल बिल्ड माय स्टार्टअप, आई विल क्रिएट समथिंग व्हिच गिव्स मीनिंग टू मी एंड व्हिच क्रिएट्स वेल्थ फॉर मी। Right. So, sir, suppose if I'm a school or a university chancellor, so if I approach you and मुझे integrate करना है life education universe का ये curriculum मेरे school में, so what are the steps that I need to take and how this all thing will work around? How much time it will take? It will take, I think, a week, because we Okay. have to. You can come to our website. You can contact us through phone or through filling up the form on the website, and then our team will contact you back, and we will start an incubation center, what we call the startup lab. Startup lab for the schools. We have a different startup lab for the schools and different kind of startup lab for the college. And this incubation center is now compulsory under the NEP. School और colleges ना उस incubation center को सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि ये कंपलसरी है ना, मुझे NAC accreditation के लिए चाहिए या NEP के लिए चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ दिखा दूंगा, I'll put a name on some wall कि ये मेरा incubation center है. Nobody is running the incubation center. So what we are doing with more than 300 schools right now, कि उनके incubation center जो startup labs हम वहाँ पे install करते हैं, we are running the complete incubation center, because it is very difficult for a regular teacher to run an incubation center. और उससे क्या होगा कि वो बच्चे हफ्ते में एक दिन वहाँ पे आके बैठेंगे, that culture will be built. और जैसे ही आपके स्कूल या कॉलेज में 2 बच्चों ने भी स्टार्टअप कर लिया, तो उसके नीचे के ग्रेड के बच्चे स्टार्टअप क्रिएट करने लगते हैं। हमने औरंगाबाद में ये किया था। वी हैव बिल्ट इन more than 2 years we have worked in Aurangabad, because I was practicing in Aurangabad code. So during that time I have started working with their some of the engineering colleges over there. So वहाँ पे 20-25 startups हमने कुछ फंड किए थे, and that community is still working. वो बच्चे कहीं पे कुछ लोगों ने वो छोड़ दिया है, but वो जो कल्चर बना था ना, जो इकोसिस्टम बना था, that is still continue. Right. देवगिरी कॉलेज में हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया था। इस बार उनको NAC एक्रेडिटेशन में रैंक फर्स्ट मिला है ऑल ओवर महाराष्ट्र में। सो एंड NAC कमिटी हैज प्रेज्ड देयर इंक्यूबेशन सेंटर विद द रमन सर ओवर देयर। ही वाज लुकिंग आफ्टर, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो मुझे हेल्प करते थे मैं जब वहाँ पे जाता था। शिवकर सर वहाँ पे डायरेक्टर थे, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। प्रिंसिपल हो तो वैसा हो किसी स्कूल का कॉलेज का। ही ऑलवेज वांट्स टू इम्प्रूव द सिस्टम। बच्चे उनको देख के ना एक अलग एटमॉस्फेयर उन्होंने बता दिया था कि बच्चे उनको देख के एक डर भी था, रेस्पेक्ट भी था, और बच्चे कुछ करते थे। तो वी कुड डू फ्यू थिंग्स ओवर देयर, और उसका एक फ्रूट आज दिखता है कि वहाँ पे अभी भी स्टार्टअप कल्चर बना हुआ है औरंगाबाद में। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट दैट 1 year 2 year सिस्टम, इकोसिस्टम एक बार बन जाए तो इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बट टीचर्स का ऐसा है कि ओके लॉ में कंपलसरी है NAC से या NEP के अंदर, तो आई विल पुट अ नेम ऑन सम क्लासरूम,
बट वो रन कैसे किया जाए, तो वी आर जस्ट रनिंग दोस इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप लैब्स फॉर द स्कूल्स, एंड इट इज इजी टू जस्ट कॉन्टैक्ट अस, एंड वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट पर्पस, एटलीस्ट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. Students will enroll for the courses, and even from those courses schools can earn something. We are sharing revenue with them also, but only after students are interested and they subscribe for our 1 year or 6 months course, then we are charging. Rather, we will have a continuous lectures over there. Every week there will be lectures, there will be some offline lectures also at the district level, so that way school can be part of this. And I think कि every school has to adopt to this system, because आपको अगर आपके बच्चों को ना future ready करना है, the way technology is changing, nobody is going to get regular jobs, so they have to create something around their passions. So you have to teach those things to your students from the school days only. Creating a skilled task force is what we are aiming Build for. this task force plus the visionary task force. They should have their visions. Right. So sir, here आपने कुछ अपने accomplishments के बारे में बात की, तो सर लाइफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी का सबसे मेजर accomplishment टिल डेट क्या रहा है, और वो सक्सेस को आपने कैसे सेलिब्रेट किया? I think सक्सेस अगर बोला जाए ना, तो हर साल मैं जो स्टूडेंट्स देखता था, मेरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स, एवरी ईयर व्हेन आई स्टार्टेड इन नांदेड़, देन इन औरंगाबाद, एवरी बैच, सब लोग आईएएस आईपीएस तो नहीं बने, बट द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ, they have found meaning in the life. Everybody is in different sector, they are working, some people are working in startups, some working in the civil services, but they are leading a meaningful life. I would say कि that is the most prestigious thing for us. और हमने कुछ अवार्ड्स भी जीते थे. पीछे हम आईआईटी मुंबई और जय हिंद कॉलेज ने एक फंक्शन किया था 2017-18 में, तो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे स्टार्टअप्स आए थे. आई थिंक 600 स्टार्टअप्स टीम ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, एंड वी रैंक फर्स्ट इन दैट competition. It was a huge achievement, I would say, and that gave me a confidence कि okay, we can also create something like startup in the education. और तब मुझे पता चला कि इसको स्टार्टअप बोला जाता है. Honestly, जो हम कर रहे थे उसको स्टार्टअप बोला जाता है, मुझे पता चला था 2017 के आसपास की, और इसे बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है, ऐसी चीजें, इकोसिस्टम उस तरह से पता चली. उसके बाद मैं पुणे मूव हुआ, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, एंड वी हैड अ वेरी गुड इवेंट. इवन यू अटेंडेड दैट इवेंट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस. So after the event, the reaction of the principals and the dignitaries over there, with ex-VCs and the committee members of the NEP, the way they appreciated, वो बहुत बड़ा appreciation था. हम हर बार सोचते हैं कि if we are doing something, तो उसका material realization होने के बाद ही हम उसको success में देखते हैं. But if you are doing something and an intellectual person of that level appreciates your work, I think that is the actual success, I would say. वो मटेरियल रियलाइजेशन तो अपने आप हो जाएगा. दैट इज द साइड, आई वुड से, बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. सो दैट इज अ बिग सक्सेस फॉर अस, आई वुड से. Right, sir. So you emphasize on creating a generation of job creators and not job seekers. And there are so many students, those who are in their 20s and those who graduate and they want to be an entrepreneur. So what are the courses that you would suggest them to take up? आई थिंक इंडिया में अभी ना ऑनलाइन में बहुत से कोर्सेस है स्टार्टअप में, बट हम कितने लोग हैं जो ऑनलाइन में ना उतना अच्छे से पढ़ पाते हैं. ऑनलाइन में आपको नॉलेज मिल जाता है, बट ऑनलाइन में ना आपका हैबिट पैटर्न और थॉट पैटर्न नहीं चेंज हो सकता. यू कैन गैदर नॉलेज. और मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बायजूस एंड अनअकैडमी एंड ऑल, अगर आप यूट्यूब को अच्छे से सर्च कर लो ना, रिसर्च करना सीख जाओ ना, आपको ऑनलाइन में कोई भी चीज परचेस करने की अभी जरूरत नहीं ना. नॉलेज इज फ्री, तो ऑनलाइन आपको सब मिल सकता है. बट आपके थॉट पैटर्न पे, इंडिविजुअल लेवल पे, आपका जो एक पैटर्न है ना, उसको एक मेंटोर या एक टीचर आपके साथ बैठ के ही काम कर सकता है. इट इज अ एनर्जी which communicates between two living persons that can change the person, I would say. And that's why we have launched this residential program here at Vamicom in Pune. So उससे क्या होता है कि if you are living a life जहाँ आप सुबह 7 बजे कैंपस में आ रहे हो, शाम 7 बजे तक ऐसे कैंपस में हो जहाँ पे ना हर बच्चा स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है, and you are living that life for a year. Just think about that. अब 1 साल के बाद बाहर जब जाओगे ना, you have already become that person. I say कि education ना transformational education हो.
कि बच्चों को ये करो वो करो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट पीपल आर कमिंग देयर, स्टूडेंट्स आर कमिंग देयर, दे आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, दे आर गोइंग आउट ऑफ सिस्टम एज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन. आई वाज नेमिंग इट कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. हम उस एक साल के प्रोग्राम को वैसा नाम भी दे रहे थे, बट इट वुड लुक सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग. तो हमने वो स्टार्टअप पे इंक्लूड किया है कि वी ऑलवेज इंटीग्रेट आवर स्टार्टअप कोर्सेज विद लाइफ एजुकेशन कोर्सेज. लाइफ एजुकेशन मीन्स चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम, your habits, your thought patterns, means everything is a pattern. हमारे लाइफ में ना हमारा हर चीज करने का एक पैटर्न होता है, और उन पैटर्न्स की वजह से यू माइट हैव हर्ड अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सीक्रेट, जो हम यहाँ पे होल्ड करते हैं ना, दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ. और वो चीज सिर्फ पढ़ के, कोई मूवी देख के सीक्रेट जैसी या एक बुक पढ़ के नहीं आती है. यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर अराउंड यू which in which you will transform, because that is a transformational education, I would say. Right, so. So, there is so much to learn from you, and I think we can go on and on and on, but we need to understand that we have already been discussing from past 45 minutes. So now we would wind it up with a rapid fire round. Here, sir, आपको मुझे one word या maximum one sentence में ही answer करना है. उससे ज़्यादा words आप use नहीं कर सकते. So we will start with a rapid fire round, and my first question to you is, आप एक educationist हैं, लेकिन अगर आप एक एजुकेटर या एजुकेशन सेक्टर में नहीं आते, तो आप अपनी लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चूज करते? I would choose traveling. ट्रैवलिंग. Traveling. ओके. Yeah. Something related to travel. समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. ओके. व्हाट इज द मोस्ट annoying quality you find in a person? Being egoist. Being egoist. Okay. What do you look into the person when you meet them for the first time? Vibes, frequency, authenticity, I would say. Okay. Favorite vacation destination? My hometown, my village. MBA or entrepreneurship? Which is better? Entrepreneurship, definitely. MBA creates No doubt about managers. All right. What do you do in your recreational time? What are your hobbies? I read and spend time with myself. Okay. One thing about you which many people do not know. That I am a very, I would say, naughty person. I would say naughty in a childish way. Means Okay. I'm very energetic and very enthusiastic, very spontaneous person. All right. Moving ahead to my next question. If you were to leave, if this episode has to be viewed by in other generations to come, what would be the piece of wisdom that you would like to leave for them? Dream big, go big. You will collapse. So many times you will fail and fail and fail, but you will learn something. And that will bring the authenticity of your being to you. Search for that authenticity. And that happens only by following your dreams. So true. Absolutely, sir. So before we wrap up this episode, I would like you to give a closing note for our aspiring entrepreneurs, especially those who want to make a difference in education. In education, I think everyone is an educator. Just be yourself, be authentic. That's the most beautiful thing about a human being. When we say creativity now, what is creativity? Putting something in your own way. Just imagine कीजिए, आपके जैसा इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कोई कभी नहीं आया है, आगे भी कभी नहीं आएगा. You are so unique. Just be yourself. And finding that self, that's life. Beautiful, sir. So, to all my dear viewers, I'm sure this episode was very informative, engaging, and there have been a lot of takeaways from this session. So, Life Education Universe not only makes you happy, it also helps you to create wealth, give meaning to your life, support you throughout your journey as a person. It helps you find your own self and always pushes you to go beyond your limits. So this is what is Life Education Universe all about, and you have heard the founders say sharing his story with us. So to all my dear viewers, stay tuned, and thank you so much, Nitin sir, for sharing your words with us. It was Thank, really an engaging conversation, sir. Thank you. thank you, Seema. Thank you.